Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Assalamu alaikum everyone. This is Nadia Riaz here from the platform of Autism Surveillance and Management Project, Autism Without Borders. I welcome you all to another exciting session, which is about Rehab at Home series. And today we are really honored and privileged that Dr. Shagufta has joined us, Dr. Shagufta Jabeen, who is Program Advisor at Zamzam Islamabad, Zamzam Autism Center Islamabad. She's pediatrician and she's mashallah, like she has mastered in many different fields of Sunrise program, child-centered approach and various other programs, play therapy. So I would request when Dr. Shagufta will join us, I will request her to give her own introduction. Secondly, I would like to mention here that we, from the platform of Autism Without Borders, we have been striving for parent empowerment. और इसीलिए हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं. क्या किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? I have got a message that can't hear me. सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? I can hear you, Nadia. Okay. Yes. Thank you so much. Yeah. So I was saying that we have been doing various sessions, various awareness sessions for parents and parent empowerment. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट की जाए जो कि एक सीक्वेंस में हो और जिसमें पेरेंट्स को हेल्प मिले कि वो कैसे अपने बच्चों की रिहेबिलिटेशन पे काम कर सकते हैं अपने घर में. So, firstly, I would request our director, Dr. Azra Rafiq, to say a few words about rehabilitation and why it is important. And then we will start with our topic of Sunrise program. What is Sunrise program and how it is useful for our kids at home, how parents can use it for their benefit, for their development and everything. So over to you, Dr. Azra, and really very sorry to all the participants that for the inconvenience which have caused previously. Over to you, Dr. Azra. Dr. Azra. Yes, Nadia. Now we can. Can I share my screen now? Yes, please. Actually, Dr. Azra can't hear us, so I'm using sign language for her. Assalamu alaikum, everyone. Something happened, I think it is technology, so we have to face all these things. I don't know why I'm not able to hear you people, but most probably you are hearing me. So let's don't waste the time, and I will just give a brief description of the rehabilitation. And we all believe on healthy children and healthy nation. And that's why we are here today. And with permission of Dr. Shagufta Jabeen, I will just give a brief description of the rehabilitation and its need. Although it's a very big topic, ये एक बहुत बड़ा topic है rehabilitation का, और क्योंकि we are already late, मैं सिर्फ इसके brief description ही दूँगी कि हमने ये topic रखा है और इस पे हम बात कर रहे हैं. Rehabilitation जो है उसमें मेन हमें चीजें जहन में रखनी है कि एक्चुअली रिहेबिलिटेशन क्या है. व्हाट इज रिहेबिलिटेशन? देन इसका नीड क्या है? नीड ऑफ द रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन इज अ बिग टर्म और इसमें तो एक हमारा वेबिनार होना चाहिए कि रिहेबिलिटेशन का हमको मतलब बताओ. फिर जो है व्हाट कम्स अंडर द रिहेबिलिटेशन, द टाइप्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन,
then what are the benefits of the rehabilitation, and there are some misconceptions about the rehabilitation. लोग इसके बारे में कुछ गलत भी ज़हन में रखते हैं कि रिहैबिलिटेशन का मतलब कोई ऐसी चीज है कि जो सिर्फ डिसेबल लोगों को होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है. द पर्सन हैविंग द डिफरेंट एबिलिटीज आल्सो नीड, एंड हम में से हर शख्स जो है वो रिहैबिलिटेशन लाइफ में कहीं ना कहीं हमें जरूरत है. चाहे हमें ट्रॉमा हो, इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, प्रेगनेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम, हम स्ट्रेस में हो, वी नीड रिहैबिलिटेशन. नीड ऑफ द टाइम क्या है हमारा, ये हम देखेंगे कि ये सब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसमें जो है अच्छे तरीके से रिहैबिलिटेशन समझें और फिर आगे चलें. तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि it is defined as set of intervention designed to optimize functioning and reduce disability in individual with health condition in interaction with their environment. यानी कि एक बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, थेरेपीज होती है, जिसके हम जाके जिसमें से किसी को भी जरूरत पड़ सकती है. उसके बाद जो है हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है कोशिश करते हैं कि अचीव करें. और ये एक बहुत ही जो है ब्यूटीफुल बात है कि इसमें कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे, क्योंकि ऑटिज्म हमारा टॉपिक ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के अंडर ऑटिज्म सर्विस एंड मैनेजमेंट है, तो हम समझते हैं कि ऑटिज्म के बच्चे जो है वो बिल्कुल ही जैसे कुछ नहीं आता, हालांकि एक स्पेक्ट्रम है और उनकी एक डिफरेंट एबिलिटीज. तो ये आप देखें कि फिश को जिस तरह से हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो फ्लाई करें, इसी तरह बर्ड्स को हम जो है वो फोर्स नहीं कर सकते कि स्विम करें. तो इसी तरह से हर एक की एबिलिटीज अलग हैं. तो रिहेबिलिटेशन का मतलब यही है कि जो हमारे ऑटिज्म सर्विलेंस मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अचीव बेस्ट पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, चाहे वो स्पेक्ट्रम में कहीं भी है. तो इसमें जो है रिहेबिलिटेशन में एडल्ट्स को भी जरूरत पड़ सकती है, बच्चों को भी जरूरत पड़ सकती है. और इसमें जो डिफिकल्टीज हैं उसमें हमारे देखने में, सुनने में, कम्युनिकेट करने में, हमारे ईटिंग में, मूविंग अराउंड, सबको जो है हम जो है वो कवर करते हैं रिहेबिलिटेशन. और इसमें जैसे हम सबको पता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग है, फिर फिजिकल ट्रेनिंग है जिसको हम आमतौर पर फिजियोथेरेपी कहते हैं. फिर होम एनवायरमेंट चेंज करना पड़ जाता है बहुत सी जगह पे. देन एजुकेटिंग अ पर्सन. फिर इसके अलावा जो है वो प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन भी जो है रिहेबिलिटेशन का हिस्सा है. जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी में जो है वो स्पेसिफिसिटी कम करने के लिए हम कब और किस तरह से हम कोई मेडिसिन यूज करें. फिर सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग है. तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैं सिर्फ टच कर रही हूँ, और इसका कोई एक रूप नहीं बना सकते कि हर शख्स जो है वो डिफरेंट होता है, इस तरह हर बच्चा अलग होता है. तो ये जो हाईली पर्सन सेंटर्ड होता है ना, और ये कभी कभी जो है हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल बेस्ड भी होती है, कभी जो है वो एज इन पेशेंट, एज एन आउट पेशेंट, फिर बाद में कम्युनिटी सेंटर्स में होती है. फिर इसके अलावा जो है आज जैसे कि हमारा टॉपिक है कि रिहैब एट पेरेंट्स जो है सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं. ये नहीं कि अगर वो कहीं से थेरेपी करवा रहे हैं तो उनको कुछ ना पता हो, तो ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और कौन कर रहा है. इसमें ये सारी एक बहुत ही बड़ी टीम है कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, और एक ये लंबी लिस्ट है. इसमें हम तो डॉक्टर्स भी जो है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, और सबसे बढ़ के जो है वो पेरेंट्स हैं. यानी ये रिहेबिलिटेशन हम सब की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. और इसकी बेनिफिट्स क्या है कि हम एक बच्चे को जिसको बड़ा होना है, उसको डेवलप करना है, उसको उसका बर्डन सोसाइटी पे ना हो बल्कि वो कंट्रीब्यूट करने वाला बने. तो ये हम सबके जहन में होना चाहिए. और ये बीइंग ए पीडियाट्रिशियन वी नो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो है वो क्या है कि एंश्योर हेल्दी लाइफ रिहेबिलिटेशन के बगैर नहीं. और इसमें जो है ये आप देखें कि जो हमारे यहाँ जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, कि लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है, फंडिंग नहीं होती, फिर जो है वो बहुत हाई कॉस्ट है, थेरेपी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसमें रिसर्च और डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता. तो ये हम सब मिलके करना है.
इन सब जो है ओवरकम करने के लिए हम इस वक्त यहाँ एक टीम वर्क के तौर पे बैठे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे डॉक्टर लाकानी, ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और बहुत हमको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत खुशी होती है। हमारे पास फरजाना भी इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने यूएसए से ज्वाइन किया है। तो हम एक टीम वर्क मिल के करें कि हम ये रिहेबिलिटेशन किस तरह से करेंगे। और आई वेलकम डॉक्टर शगुफ्ता कि वो बताएं कि ये सनराइज, कि सबसे पहले मैंने सुना था तो मैंने कहा शायद स्पेलिंग गलत है, फिर बाद में मुझे पता चला एक्चुअली ये SON ही है। तो सनराइज किस तरह से ये हम बताएंगे ये क्या है, और सिंपल वे में कि हम बीइंग पेरेंट एज ए चिल्ड्रन केयर गिवर एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हाउ कैन वी अप्लाई इट। थैंक यू नादिया, थैंक यू डॉक्टर शगुफ्ता। Thank you so much, Dr. Azra. I know you are having a problem at your end. Technical issue is there, but still you have made it up. So now, without wasting much time, we would request our guest speaker, Dr. Shagufta Jabeen, to start with her presentation. And as I have given her a very small introduction of Dr. Shagufta, but I will request her to give her own introduction and start with her presentation. Over to you, Dr. Shagufta. Thank you so much, Nadia. Assalamu alaikum, everyone. Nadia has been very kind. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. Brief सा ही introduction है मेरा. सबसे पहले I'm a parent like you all, और studied medicine. I'm a pediatrician by profession. लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे हम identify करते हैं the true meaning of our lives. So एक मेरी ज़िंदगी का मीनिंग था जो जब मैं डॉक्टर बनी थी कि शायद मेरा यही था कि I have to become a doctor and I have to work and that's it. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था. लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मेरा दूसरा बेटा हुआ, और जब वो बड़ा होना शुरू हुआ तो he was not developing typically, और 2 years की एज पे उसका जब डायग्नोसिस हुआ ऑटिज्म का, so basically तब से जर्नी शुरू हुई, और तब से लेके अब तक माशाल्लाह he will be 15 soon. तो ऐसा लगता है कि उसके बाद ही ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो समझ में आया, एंड प्रॉबेबली दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड व्हाट माय इवेंचुअल, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे शायद किस लिए जो है वो डॉक्टर बनाया था, एंड व्हाट वाज आई सपोज्ड टू डू लेटर इन माय लाइफ अदर देन जस्ट बीइंग अ डॉक्टर. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. जो भी मैंने अपने बेटे के साथ या उसकी वजह से जो कुछ मैंने सीखा, वो जर्नी आज भी चल रही है, still learning. लेकिन एक चीज़ जो मैं अपनी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन शुरू करूँगी तो मैं उसके साथ थोड़ी सी अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी, कि मेडिसिन करने के बाद जब ऑटिज़म का एक डायग्नोसिस हमें मिला तो उस वक्त we were totally at a loss. That's when I started learning, researching, and I found behavioral therapies, and then I landed on Sunrise, which is a play-based, relationship-based therapy. तो सनराइज को रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया, ट्रेनिंग ली, स्टार्टेड वर्किंग विद माय सन, एंड लेटर ऑन एज द इयर्स पास्ड बाय हमने नेचुरल प्ले थेरेपी को जो है एक्सप्लोर किया. मैंने इन दोनों में ट्रेनिंग्स की, सनराइज में भी, उनके स्टार्टअप प्रोग्राम में भी, मैक्सिमम इम्पैक्ट में भी, अमेरिका से, मलेशिया से. इसके अलावा नेशनल प्ले थेरेपी और कम्युनिकेशन थेरेपी जो है वो भी अमेरिका से मैंने इसकी ट्रेनिंग्स की. और अब ये है कि इन सारी ट्रेनिंग्स का फिर ये कि सिर्फ मुझे या मेरे बेटे को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, इन सारी ट्रेनिंग्स का उन सबको फ़ायदा होना चाहिए जिनको इनके बारे में नहीं पता, या ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के लिए रूटीन से कुछ हट के करना चाहते हैं, कुछ बढ़ के करना चाहते हैं, और उनकी ज़िंदगी में एक चेंज लाना चाहते हैं. सो आई एम आउट देयर टू विद अ मिशन ऑफ हैविंग this empowered parenthood basically, जो कि अपने बच्चों के साथ काम करें, उनको उनकी ज़िंदगियों को empower करें और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं. So this is the aim that I work with. और currently I work at Zamzam Autism Center as their program advisor. वहाँ पे majorly मेरा जो काम है teenagers और adolescents के साथ है, और उनके साथ भी जो है वो basically child-led approach के साथ ही काम करना है, और this is what we do there. I'm just going to share my slides here and talk as we move further with our presentation. Today we are going to be talking about the Sunrise program because this is something which is like really close to my heart. क्योंकि Sunrise वो therapy है या वो program है जो हमने उस वक्त discover किया जब
मेरा बेटा तकरीबन 6 साल का हो चुका हुआ था, एंड एट दैट टाइम आई जस्ट मुझे ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन कुछ चीज कम है। ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा, मतलब मेरे बच्चे के साथ मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा जिसमें कि मुझे ये पता चले कि उसको मेरी ज़रूरत है, एज इन लाइक अ मदर सन रिलेशनशिप। ये मुझे लग रहा था विच वॉज द मोस्ट डेफिशिएंट एट दैट टाइम। मेरा बेटा ही वॉज अंडरगोइंग बिहेवियरल थेरेपीज, लेकिन उसका ये हो रहा था कि उसका जो जो लर्निंग थी या जो उसका भी वो था वो बड़ा एक रोबोटिक लर्निंग थी, एंड ही वुड कम अप टू मी बट ही वुड नॉट कम अप टू मी एज इफ ही वांटेड मी। वो मेरे पास आता था टू यूज मी एज अ टूल टू गेट हिज नीड्स मेट। सो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी डिस्टर्बिंग थी एज अ मदर कि आई वांटेड माय सन टू सॉर्ट ऑफ टू हैव दैट रिलेशनशिप विद मी, जहाँ पे कि मुझे मुझे ये एक फीलिंग आ सके जो कि आपकी माँ बेटे की आपस में होती है। So उस टाइम पे I was just researching about these things. So one of my friends, she actually told me about the Sunrise program, और उसने मुझे कहा कि why don't you go and check that out। और मैंने चेक किया। खैर बस वो होता है ना कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त आपका किसी चीज़ का वक्त लिखा होता है उस वक्त वो चीज़ हो जाती है। So मतलब उस वक्त मैंने जब मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी तो मुझे पता नहीं था कि आगे इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होना है। सो मैंने इनका रिसर्च किया प्रोग्राम के बारे में, और मैंने अप्लाई किया और मुझे उनकी तरफ से कॉल आ गई, एंड देन आई वेंट टू अमेरिका फॉर द ट्रेनिंग। इसका जो है, हम स्लाइड शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको जो है हिस्ट्री बता दूं इसकी, सनराइज की। कि सनराइज जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि पेरेंट्स ने शुरू किया था अपने बच्चे के लिए। ये इनके जो बच्चे का नाम है, मीनिंग द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ द सनराइज प्रोग्राम इज रॉन के कॉफमैन। अब रॉन के कॉफमैन वाज डायग्नोज्ड ऑन द स्पेक्ट्रम व्हेन ही वाज 2 years old। उसके पेरेंट्स ने भी देखा कि वो डिफरेंट है अपने बाकी जो पीयर्स हैं उनसे। अगर आप कंपेयर करें, वो उनको आई कांटेक्ट नहीं देता था, जब वो बुलाते थे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, तो उनको लगता था कि शायद जो है ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। और उन्होंने उसका हेयरिंग टेस्ट कराया, जिस तरह के हम में से भी 99% ऑफ पेरेंट्स जो हैं जब उनको अपने बच्चे में चेंजेस नज़र आते हैं तो वो हेयरिंग ज़रूर चेक कराते हैं। तो उसमें जब उन्होंने हेयरिंग चेक कराई तो उन्होंने कहा कि उनको भी ये पता चला कि भाई हेयरिंग तो ठीक है लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता था इमीडिएटली किसी भी चीज़ पे। और उन्होंने उसका IQ टेस्ट किया तो उनको पता चला कि IQ जो है ये सिवियरली ऑटिस्टिक है, हिज IQ इज ओनली 30, और ये पूरी ज़िंदगी जो है ये अपना कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रॉबेबली ही विल बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो अब ये है उनके साथ ये हुआ कि वो जो पेरेंट्स थे वो हमारे आम पेरेंट्स की तरह नहीं थे। उन्होंने जब उनको पता चला कि उनके बेटे का ये लेवल है और उसके साथ ये होना है आगे, तो उन्होंने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। दे जस्ट ट्राइड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा बच्चा जो है, जो इतना हेल्दी है, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, वो किस तरह से ऐसे हो सकता है कि सारी ज़िंदगी वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रहे और वो कुछ ना कर सके। तो दीज पेरेंट्स व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन्होंने अपने बच्चे को देखना शुरू किया, उसको नोटिस करना शुरू किया। और वन फाइन डे उसकी जो मदर है वो उसके साथ बैठी हुई थी, और उनका जो बेटा है रॉन के कॉफमैन, उसका जो सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव रिपेटिटिव बिहेवियर था वो ये था कि वो प्लेट्स को स्पिन करता था। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हमारे पास ऑडियंस में बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चों के रिपेटिटिव एक्सक्लूसिव बिहेवियर्स हैं, जिनको हम स्टिम्स कहते हैं, उसमें किसी ना किसी का बिहेवियर स्पिनिंग होगा यकीनन। तो वो प्लेट्स को स्पिन करता था, तो उसकी मदर ने उसके साथ बैठ के प्लेट्स को स्पिन करना शुरू कर दिया। जब उसकी मदर ने प्लेट्स को स्पिन करना शुरू किया तो उस वक्त पहली बार, तब रॉन तकरीबन 2.5 साल का था, उस वक्त पहली बार उसने अपनी माँ की तरफ आंख उठा के देखा। तो आप इमेजिन करें कि 2.5 साल तक जिस बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा नहीं, उसको आई कांटेक्ट नहीं दिया, उसकी तरफ देख के स्माइल नहीं की, उसने उस दौरान अपनी मदर को देखा और स्माइल की। सो दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आप कहने द स्टेपिंग स्टोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सनराइज प्रोग्राम। कि उसकी मदर ने ये देखा कि जब मैंने अपने बेटे को उसकी एक्टिविटी में या उसकी दुनिया में ज्वाइन इन किया, दैट इज द टाइम जब उसके बेटे ने उसको देखा
और उसकी तरफ जो है वो मतवज्जो हुआ। सो उस टाइम से उन्होंने इस प्रोग्राम को डेवलप किया। मैंने आपको थोड़ी बहुत अपनी जर्नी बताई कि हमें सनराइज के बारे में कैसे पता चला। हमने भी ये वीडियो, इसकी मूवी देखी, वहाँ जाके रॉन के कॉफमैन के साथ, उसके साथ ट्रेनिंग की, उसके पेरेंट्स के साथ ट्रेनिंग की, वहाँ पे और भी टीचर्स के साथ। तो उन्होंने फिर हमें आगे समझाया, बताया कि किस तरह से हमने काम करना है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब सनराइज प्रोग्राम है, इसमें जो ज़्यादातर काम है वो पेरेंट्स पे है। बहुत कम काम जो है वो स्टार्टअप के लेवल के ऊपर आप बच्चे के साथ करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क है दैट इज एक्चुअली विद द पेरेंट। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हमें बच्चे का डायग्नोसिस पता चलता है तो हम थेरेपीज की तरफ दौड़ पड़ते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ऑब्वियसली हर पेरेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मेरे बच्चे का डायग्नोसिस हुआ था तो मैं भी थेरेपीज की तरफ ही गई थी। लेकिन हम ये चीज़ जो है वो रियलाइज नहीं करते फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए हमें अपने बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के बजाय अपना बिहेवियर जो है उसको भी चेंज करना है। सो सनराइज इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ टू बिगिन विद। बेसिकली हमें बच्चे की दुनिया में जाना है और उसको वहां से हमें बाहर लेके आना है। दैट इज द होल बेसिक या बेसिस ऑफ द सनराइज प्रोग्राम। सनराइज को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ऑटिज्म को उसके एक पर्सपेक्टिव से जो है वो सनराइज के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। जब हम ऑटिज्म को डिफाइन करते हैं तो जब DSM-5 की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो वी कम अप विद दीज डिफरेंट डेफिनेशंस कि इट्स अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। दोनों डेफिनेशंस गलत नहीं है, लेकिन बिहेवियर डिसऑर्डर जो है, बिहेवियर इज मतलब it's not a right terminology, if I would say, if I would take that liberty to say that autism is not a behavioral disorder, because behavior is just a symptom. ठीक है, उसके पीछे जो कॉज है वो कुछ और है। सो रीजन जो है वो कुछ और है। तो बिहेवियर तो एक बिहेवियर किसी भी वजह से हो सकता है। अगर इस वक्त जो है मैं अपने कान बंद कर रही हूँ तो जरूरी तो नहीं कि मुझे ऑटिज्म ही है तो मैं अपने कान के ऊपर हाथ रख के उनको बंद कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं ना सिर्फ के शोर से तंग हो रही हूँ बल्कि हो सकता है कि मेरे कानों में दर्द हो रही हो जिसकी वजह से मैं अपने कानों पे हाथ रख रही हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसी जो है वो इनपुट है जिसको मैं अपने आप से अपने आप तक पहुंचने नहीं देना चाह रही, इसलिए मैं अपने कान बंद कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई भी और रीजन हो सकती है। सो कानों पे हाथ रखना, ये जो बिहेवियर है, इट इज जस्ट अ सिम्टम, इट डज नॉट डिफाइन मी एज अ पर्सन, या इट डज नॉट डिफाइन कि इसके पीछे वजह क्या है। सो ऑटिज्म, defining it as a behavioral disorder is unfair. Neurodevelopmental disorder, that's how we generally define autism. But when it comes to Sunrise, the way Sunrise describes it, it is a social relational disorder. अब सोशल रिलेशनल डिसऑर्डर जो है, देखें अगर आप खुद देखें तो इट मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि ऑटिज्म में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑटिज्म जो अफेक्ट होते हैं, दैट इज योर सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन में आपकी जो वर्बल स्पीच है वो तो है ही है, उसके अलावा आपका आई कॉन्टैक्ट है, उसके अलावा आपका एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है वो है, सोशल क्यूज को पिक करना, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटिस्टिक बच्चों में डेफिशिएंट होती हैं। So as per Sunrise, autism is a social relational disorder, not a behavioral disorder. So this is a perspective that I want to bring into limelight for parents to understand, and also for the caregivers and the professionals to understand कि हम हर वक्त जो behavior के ऊपर focus करते हैं, behavior is just a symptom. Moving forward, थोड़ा सा जो है मैं आप यहाँ पे बात करना चाहूँगी ऑटिस्टिक ब्रेन और न्यूरोटिपिकल ब्रेन के हवाले से। नादिया, कैन यू ऑल हियर मी प्लीज? मुझे बता दीजिएगा इफ यू कांट हियर मी। यस वी कैन। ओके, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी रिगार्डिंग जो ऑटिस्टिक ब्रेन और न्यूरोटिपिकल ब्रेन है उसके बारे में। एक सिंपल सी एग्जांपल है, हम सारे इस वक्त बैठ के बात
अब मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन आवर एनवायरनमेंट। मैं भी इस वक्त बात कर रही हूँ और मेरे आसपास बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत डिलेज भी हुए। लेकिन हम सब एक एनवायरनमेंट में इस वक्त बैठे हुए हैं। पंखों की आवाज़ होगी, कोई बैकग्राउंड नॉइज होगी, हो सकता है बाहर से कोई परिंदों के बोलने की आवाज़ हो। ये सारा जो है सेंसरी इनपुट है। मीनिंग हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक मोटर इनपुट है और एक सेंसरी इनपुट है। सेंसरी इनपुट क्या करता है कि वो पूरे एनवायरनमेंट में से जो सिग्नल्स हैं, सेंसरी सिग्नल्स हैं, चाहे वो हम देखने से ले रहे हैं, चाहे वो हमें आवाज़ आ रही है, चाहे हम हमें स्मेल आ रही है, चाहे हम उसको टच कर रहे हैं, ये सारे सिग्नल्स जो हैं ये हमारे सेंसरी सिस्टम से जो है हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। और हमारा जो सेंसरी सिस्टम है ये क्या करता है कि ये इनके ऊपर एक चेक रखता है, इनको इंटीग्रेट करता है कि किस चीज़ की इस वक्त इंपॉर्टेंस है, उसको मैंने महसूस करना है या सुनना है या उस पर तवज्जो देनी है, वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा और जो हमारा मोटर सिस्टम है फिर वो उसके हिसाब से एक्शन लेगा। ठीक है, सो ये एक सिंपल जो है वो वे है ऑफ द ब्रेन टू वर्क। तो मैं इस वक्त अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों से आप ये कह लें कि बिल्कुल उनको साइड पे करके उनको एक तरफ रख के सिर्फ इस वक्त जो है वो इस विजुअल इनपुट के ऊपर फोकस कर रही हूँ जो मेरे सामने है। ठीक है, बाकी का जो पंखा चल रहा है, जो पीछे परिंदों की आवाज है, जो बाहर से गाड़ियों की आवाज है, आई एम एबल टू पुट देम असाइड और टू नॉट टू फोकस ऑन देम। लेकिन ऑटिस्टिक ब्रेन में क्या होता है कि इनमें सेंसरी इनपुट जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं होता, सेंसरी सिस्टम डिसइंटीग्रेशन होती है, जिसकी वजह से सारा सेंसरी इनपुट, चाहे वो उनकी आईज से आ रहा है यानी कि लाइट है, वो किसी बस की आवाज़ है, किसी के रोने की आवाज़ है, अजान की आवाज़ है, किसी भी चीज़ की आवाज़ है, उसके अलावा उनकी भूख है, उसके बाद उनका जो है वो गर्मी है, सर्दी है, ये सारी चीज़ों का इनपुट एक ही फ्रीक्वेंसी से उनको अफेक्ट कर रहा होता है। और उससे ये होता है कि उनका ब्रेन जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, एक क्योस में चला जाता है। वो उसको समझ नहीं आती कि मुझे किस चीज़ के ऊपर अभी फोकस करना है, किस चीज़ के ऊपर नहीं करना। और जिस तरह हमारे साथ होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हमारे ऊपर हमला कर देती हैं या उनको हमें जो है वो प्रोसेस करना होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसी तरह आप सोचें कि ऑटिस्टिक ब्रेन हर वक्त एक ऐसी कैफियत में रहता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा इनपुट जो है वो अपनी सराउंडिंग से मिल रहा होता है। And hence the child becomes frustrated and overwhelmed, and hence you see a lot of behaviors. So ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको आगे जाके इसको मज़ीद समझने में हेल्प करेगा कि हमारे बच्चे जो कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं और क्यों हमें उनके साथ ज्वाइन इन करना जो है वो ज़रूरी होता है। Okay. So the first thing when we talk about the sunrise program is the sunrise belief. कि sunrise belief क्या है? Belief is that my child has unlimited potential to grow. हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बच्चों का डायग्नोसिस होता है और हमें पता चलता है कि उनको ऑटिज्म है, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी वहाँ रुक जाती है और हमारी भी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। हमारे बच्चे जो हैं वो आगे पता नहीं ज़िंदगी में कुछ अचीव कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अक्सर तो घरों में मैंने ये भी देखा है कि वो उनको लेबल लगा के, अच्छा ये तो पागल है, ये तो आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तुम बाकी बच्चों के बारे में सोचो। उन बच्चों के ऊपर तवज्जो भी देना छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा बिलीफ है वो ये है कि आवर चाइल्ड, डिस्पाइट ऑफ द डायग्नोसिस, irrespective of the level of ability, has the potential to grow. ठीक है, जस्ट लेट दैट सिंक इन योर माइंड कि आपने, इट इज अ काइंड ऑफ, जैसे आप अपने आप को ना रोजाना आप याद करवाते हैं, इट्स एन एफर्मेशन दैट यू हैव एवरी डे फॉर योर चाइल्ड। माय चाइल्ड हैज एन अनलिमिटेड पोटेंशियल टू ग्रो एंड माय चाइल्ड इज केपेबल ऑफ अ लॉट मोर देन ही और शी कैन शो। इससे मुराद यही है जो हमारे बच्चों के बिहेवियर्स हैं। जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली स्लाइड में बताया कि ऑटिस्टिक ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोड या ओवरवेल्म्ड होता है बिकॉज ऑफ द सेंसरी इनपुट। और जिस वक्त आप परेशान होते हैं उस वक्त यू नॉट योर बेस्ट सेल्फ, आप नहीं बता सकते या नहीं परफॉर्म कर सकते टू योर बेस्ट पोटेंशियल। आप हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देंगे, हो सकता है बिल्कुल भी ना बोल सकें, हो सकता है अगर बोलें तो बिल्कुल गलत बोल दें। असल बात तो ये कि जिस वक्त बच्चा रेगुलेटेड है, जिस वक्त बच्चा अपने कंफर्ट जोन में है, उस वक्त बच्चा कैसे परफॉर्म करता है, दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू सी देयर चाइल्ड। सो अगर बच्चा किसी बिहेवियर में है
तो दैट बिहेवियर डज नॉट डिफाइन द पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है, वो उस बिहेवियर में है क्योंकि उस वक्त वो परेशान है, उस वक्त उस बच्चे को हेल्प चाहिए, ही नीड्स सपोर्ट, एंड व्हेन द चाइल्ड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ सपोर्ट देन योर चाइल्ड इज एबल टू डू अ लॉट मोर। ठीक है, अच्छा, स्टिमुलस बिलीफ रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक बहुत ही मजे की चीज है। मजे की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की एग्जाम्पल्स में ये चीज देखते हैं कि एक ही स्टिमुलस है, यानी कि एक ही बात है, लेकिन दो लोग उसको मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं। जिस तरह एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये अक्सर आपने सुनी होगी एग्जांपल, लेकिन इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर दो लोग हैं, एक इंसान है, उसको आप एक चीज देते हैं, वो बहुत खुश होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे ये चीज मिल गई है, ठीक है, और उस खुशी में आके फिर आगे वो और भी अच्छी अच्छी बातें सोचता है, अच्छी अच्छी चीजों को प्लान करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वही चीज किसी और बंदे को देंगे तो वो उसके मिलने के बावजूद कंप्लेंट ही करता रहेगा, कंप्लेंट करता रहेगा और कहेगा कि यार इससे भी बेहतर होना चाहिए था, अगर ये तो मुझे मिल गया, लेकिन अगर मुझे वो चीज मिल जाती तो मैं ज्यादा खुश होता। तो हमारी जिंदगी में जो भी स्टिमुलाई आते हैं, यानी कि जो भी वाकयात होते हैं, हमारा उस स्टिमुलस के ऊपर हमारा क्या बिलीफ है उसको लेके, और उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह अगर कोई दूसरा जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी एल्सेस बिलीफ एंड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब उसमें ये है कि अब मेरे बेटे का डायग्नोसिस हुआ या बेटी का डायग्नोसिस हुआ, और मुझे ये पता चला कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चे के जो बिहेवियर्स थे इनकी वजह क्या थी। नाउ दैट आई फाइनली नो कि मेरे बच्चे को या बच्ची को ऑटिज्म है, तो अब मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। सो द स्टिमुलस वाज द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। माय बिलीफ इज कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया, थैंक यू, शुक्र है, you know, I just finally figured out something, and the response is okay, I'm going to help my child. At the same time there's another parent जिसको stimulus same है कि बच्चे का या बच्ची का diagnosis हुआ है, and the belief is that of मेरे बच्चे का diagnosis हो गया, अब उसकी जिंदगी end हो गई है, उसकी जिंदगी में आगे सारी उम्र मैंने उसकी हेल्प करनी है। रिस्पॉन्स क्या होगा? आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप मिजरी में जाएंगे, और आप अपने बच्चे को हेल्प नहीं कर सकेंगे, या करेंगे भी डेफिनेटली, लेकिन उस तरह से उसको हेल्प नहीं कर सकेंगे जिस तरह के आप शायद उसको अपने एक बेहतर या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर सकते हैं। सो Sunrise believes in the fact that happiness is a choice and misery is always an option. ठीक है, आप किस तरह से किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहें तो ये आप की चॉइस है, वरना आप जितना मर्जी जब किसी ना किसी चीज के ऊपर परेशान होना, तो वो तो बहुत ही आसान बात है। मिजरी इज ऑलवेज एन ऑप्शन। आपके पास सब कुछ हो, आप फिर भी कोई ना कोई चीज ढूंढ के परेशान हो सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आप खुश हो सकते हैं। दिस इज अ चॉइस, एंड this is the topic of the book written by Barry Neil Kaufman, who was the founder of the Sunrise program, और उसका नाम था Happiness is a Choice। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर वो किताब पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके फेथ को हिला के रख देती है। मतलब बीइंग मुस्लिम्स, हमारा जो फेथ है उसको वो बहुत स्ट्रेंथन करती है। It's a lot in line with that. So if you ever come across with this book, Happiness is a Choice, please go and read that book. And another belief that I want all the parents to have is that I am a force of nature for my child. यानी मैं अपने बच्चे के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी। आपको पता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत रेजिलिएंट होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं, and that is what you need when your child is diagnosed on the spectrum. You are the force of nature for your child, and you're going to do whatever it takes to help your child. This is the Sunrise belief that you have to have if you are going to take up the Sunrise program. Then comes the Sunrise attitude. ठीक है, एटीट्यूड जो है वो आपके बिलीफ से ही स्टेम करता है। सो अगर आपका बिलीफ जो है वो पॉजिटिव है, एंड you've chosen to be happy, you've chosen to accept कि जो आपके साथ हुआ है, then comes your attitude of working with your child. आपका attitude कैसा होना चाहिए? सबसे पहले the first and foremost आपका attitude accepting होना चाहिए। accepting से मुराद कि मेरा बच्चा या बच्ची, they are perfect the way they are. okay? आपने जब आप किसी से आप
आप प्यार करते हैं, मतलब आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके अम्मी अब्बू हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी वो फैमिली है, आप उनको अच्छाइयों और बुराइयों समेत कबूल करते हैं ना। तो आपके बच्चे का जब ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ है तो आप उसकी एबिलिटीज और उसके लिमिटेशंस के साथ मुकम्मल तौर पे यू आर एक्सेप्टिंग योर चाइल्ड, यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग। अल्लाह ताला ने जिस तरह उसको पैदा किया है उसको अपने उसमें परफेक्ट पैदा किया है। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग। देन इज लविंग, कि आप अपने बच्चे से अनकंडीशनली यू लव एंड यू सपोर्ट योर चाइल्ड, चाहे कुछ हो जाए, उसमें कोई बिहेवियर आ जाए, उसमें कुछ हो जाए, यू आर लविंग योर चाइल्ड अनकंडीशनली, ऑटिस्टिक और नॉट, डजंट मैटर। आपका एटीट्यूड नॉन जजमेंटल होना चाहिए। नॉन जजमेंटल मीन्स कि आपका बच्चा कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आप उसको जज नहीं कर रहे। जज से मुराद ये है कि अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल स्पिटिंग कर रहा है, अगर आपका बच्चा जो है वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, या आपका बच्चा जो है वो भाग रहा है इधर उधर, तो आप उसको देख के ये जज नहीं कर रहे कि ये बदतमीजी कर रहा है, इसको जो है वो एक थप्पड़ लगा के मैंने सीधा करना है, या ये कि इसको तो कोई सेंस ही नहीं है कि मैंने किस तरह से बिहेव करना है। दीज आर ऑल जजमेंट्स, ठीक है। या ये कि उफ मेरा बच्चा तो ये कर रहा है तो ये तो जिंदगी में कभी ठीक ही नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो अ जजमेंट। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए नॉन जजमेंटल। ओके, बच्चा जो कर रहा है दैट इज अ बिहेवियर, आई कीप रिमाइंडिंग यू, अ बिहेवियर इज ओनली अ सिम्टम, दैट इज नॉट योर चाइल्ड, right? So non-judgmental behavior, then you should be present in the moment. हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे 2-2.5 साल का बच्चा आपका, उसका डायग्नोसिस हुआ ऑटिज्म का, अब आप बिल्कुल भूल गए हैं कि आपका एक 2 साल का प्यारा सा बच्चा भी है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर चाइल्ड लाइक अ बेबी एंड एंजॉइंग दोज मोमेंट्स विद योर चाइल्ड, आप थेरेपीज के अंदर बिजी हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, लेकिन आप मुसलसल उसके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, मेरे बच्चा जो है वो बड़ा होके क्या करेगा, पता नहीं वो उसका एडमिशन होगा स्कूल में या नहीं होगा, वो आगे मेन स्कूल में जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, उसकी शादी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। और वो आप शादी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो बच्चा 2 साल की उम्र में, उसको जो प्यार जो मोहब्बत आपसे चाहिए, या जो उसको मतलब एक बेनिफिट ऑफ डाउट एक बच्चे का जो आप देते हैं, इवन आम बच्चों को आप देखें कितने शरारती होते हैं, इतना इतना कुछ कर देते हैं, लेकिन चूंकि वो बोल रहे होते हैं, टिपिकली डेवलप कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि ये बड़ा होके पता नहीं इसको तमीज आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं बड़े होके मैनर्स सीखेगा या नहीं सीखेगा, उसका कुछ नहीं होता, उसको बच्चा है, बच्चा कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा ये सारी हरकतें करता है तो हम उसको छोड़ के पता नहीं दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। सो यू लिव इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट विद योर चाइल्ड, और उसका चाइल्डहुड जो है वो उसको भी इंजॉय करें। पैशनेटली परसिस्टेंट, मीनिंग ये कि जब आप बच्चे के साथ काम करना शुरू करते हैं और आप बच्चे के साथ होते हैं, बच्चा आपकी प्रेजेंस को कंसिडर करता है नहीं करता, आप उसको वो चीज़ सिखा रहे होते हैं, सीखता है नहीं सीखता, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली उसके साथ काम करते रहना है, दैट इज बीइंग पैशनेटली परसिस्टेंट। यूजर फ्रेंडली, अब यूजर फ्रेंडली बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये है कॉनोटेशन। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपको अपने रिस्पॉन्सेज को बड़ा कंसिस्टेंट रखना है बच्चे के साथ, ताकि बच्चे को पता हो कि जैसे ही मैंने ये बात करनी है मतलब मुझे फौरन इसका जवाब मिलना है, और जवाब भी सेम होना चाहिए। ये इसके ऊपर मैंने पहले एक दफ़ा एक टॉक की थी बाउंड्री सेटिंग के ऊपर, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए अपने आप को इंतहाई सिंपल बना के रखना है कि मतलब जिस वक्त आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पे मौजूद हों। आपने जब उसने कोई एक दफ़ा कोई चीज़ मांगी और आपने उसे कहा है कि ले लो, और आपके ख्याल में वो चीज़ देने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप उसको हर सिचुएशन में दे दें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने बच्चे को नहीं देनी, तो ये नहीं कि अभी इस वक्त मेहमान आए मैं तो दे देनी, और कल मेहमान जब नहीं होंगे तो मैं नहीं दूंगा, और उस वक्त मैंने इस तरह करना। नो, बी प्रिडिक्टेबल एंड फ्रेंडली, ईजी टू अंडरस्टैंड। यूजर फ्रेंडली का मतलब है ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर योर चाइल्ड। हमारे बच्चों की जिंदगी में प्रिडिक्टेबिलिटी का बहुत रोल है। तो अगर आप एक वक्त में किसी एक तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरे वक्त में किसी और तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, सो दैट इज बीइंग अनफ्रेंडली। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू मेक आउट हाउ माई पेरेंट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू मी व्हेन आई डू सच एंड सच. So be that user-friendly person, be that person who is going to respond in a similar way in most of the situations.
बीइंग फ्लेक्सिबल मीनिंग अगर आप हमारे बच्चों को आप बताएं कि उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, आम जुबान में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ फिक्सेशंस, राइट? तो उन फिक्सेशंस में ये है कि अगर उनमें आपने फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एज वेल। कि किसी वक्त बच्चे के साथ जब आप खेल रहे हैं तो मेक दो सिली मिस्टेक्स, ठीक है, जानबूझ के गलतियां करें ताकि बच्चे को लगे कि ओ इट्स ओके, आज कोई काम आपने करना है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें अपनी रूटीन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, उनको शो करें कि इट्स ओके कि आज मैंने ये वाला काम जो है अगर अभी इस वक्त किया है तो कल मैं ये काम आधे घंटे बाद भी कर सकता हूँ। आज मैंने खाना टेबल पे बैठ के खाया है तो मैं खाना जो है वो नीचे दस्तरखान पे बैठ के भी खा सकता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ फ्यू एग्जांपल्स, लाइक you have to show flexibility to your child in order for your child to be flexible. So this is basically the sunrise attitude. जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही या थोड़ी सी आपको मुश्किल हो रही हैं, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस या आप अपने चैट बॉक्स में जरूर क्वेश्चंस शेयर करते रहें। हम इंशाल्लाह ताला एंड पे वी आर गोना टॉक अबाउट द क्वेश्चंस एज वेल। Okay, so everybody with me so far? Yes. Oh, okay. Perfect. Okay, actually मुझे क्योंकि नजर नहीं आ रहा इसलिए it's very strange for me कि I'm just talking to the screen. कभी हुआ नहीं ऐसे. It's a very different kind of presentation this time. So अच्छा जी, तो फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ द सनराइज प्रोग्राम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे तो जो सनराइज के स्टेप्स है वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप में से कोई बंदा जो है वो अपने बच्चे के साथ घर पे सनराइज प्रोग्राम शुरू करना चाहता है तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट यू नीड टू स्टार्ट ऑफ। और उसमें सबसे पहला जो है दैट इज ज्वाइनिंग। Joining is going to lead you to an understanding of the red lights and the green lights. After understanding the purpose of the green lights, you are going to be considering the motivation of your children to develop that interactive attention span with them, जिससे कि आप इनके साथ इंशाल्लाह ताला further learning में इनका काम कर सकते हैं। So without further delays, let's talk about joining. Okay, so joining जो है that is the heart and soul of the Sunrise program. It is the most important tool, the most important step. जब आप joining करना सीख जाते हैं तो आप ये समझे कि आधा काम आपका हो गया, क्योंकि joining जो है that is the first step that helps you bond with your child. ये आपके relationship building में help करता है आपके बच्चे के साथ। किस तरह से कि आपने बॉन्ड करना है by joining your child's ism. Ism जो है is another word which is specifically used by the Sunrise program in place of stims, क्योंकि उनको लगता है कि स्टिम जो है it gives a very negative connotation to a behavior, इसलिए वो repetitive behaviors को या stimming को ism कहते हैं. So it doesn't matter आप stimming कह लें या isming कह लें, it just doesn't matter. लेकिन joining is basically कि आप अपने बच्चे के जो repetitive and exclusive behaviors हैं उनको आप join करते हैं. ओके, आपने पहले उनकी दुनिया में जाना है और उनकी दुनिया में जाने का जो आसान तरीन रास्ता है is by joining their repetitive behaviors. You step into their world, you show them how kind you are, you show them how accepting you are of all their behaviors, and then you gently hold their hands and you pull them out to your world. देखिए, आप इस दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आप जो हैं, आपका बच्चा जो है वो आपको देखता है और उसको लगता है कि अच्छा यार मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे कोई फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट placing unrealistic and huge expectations from me, they are nice people, so why not, you know, I go and I see how their world looks like. ये इसी तरह से है जैसे हम किसी नई जगह पे जाते हैं और आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो कि आपको बिल्कुल कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है या आपके साथ बड़ा रूडली बोलता है, तो आपके जहन में एक बार सेट हो जाती है कि यहाँ के तो लोग ही बड़े सड़ियल मिजाज हैं, बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। लेकिन उसकी वजह यह है कि आप उस एक बंदे से मिले जिससे आपका इनकाउंटर हुआ और वो ऐसा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह के बाकी सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन चूंकि आपका इंटरेक्शन वो है, सो यू हैव दैट माइंडसेट। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, जो कि आपको आपकी ना सिर्फ हेल्प करते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग सेटल्ड इन अ न्यू प्लेस, लेकिन आपको गाइड भी करते हैं, आपको नई चीज़ों के बारे में बताते भी हैं, आप कहते हैं ओ यार यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, सो देन यू आर मोर इनकरेज्ड टू सी दैट प्लेस ऑन अ बिगर वे। इसी तरह हमारे बच्चों में भी जब बच्चों का डायग्नोसिस होता है और जब उनके बिहेवियर्स होते हैं तो हम हर वक्त क्या करते हैं,
हमारे बच्चे हैंड फ्लैपिंग कर रहे होते हैं तो हम उनके हाथ रोक देते हैं, वो अगर बॉडी को हिलाना शुरू कर देते हैं तो हम उनकी बॉडी को पकड़ लेते हैं। तो हम जो चीज जो उनको रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है हम उसी को रोक लेते हैं। सो व्हाट इज द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग? Being a parent, you doing it out of your best intentions कि मेरे बच्चे को कोई ये ना कहे कि ये पागल है, या मेरे बच्चे को ये ना कहे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसका दिमाग सही है। बिकॉज ये वो जनरल कमेंट्स है ना जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। लेकिन आप उस बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? उस बच्चे को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ओ माई हैंड्स वर हेल्पिंग मी रेगुलेट माई सेल्फ, और मेरी माँ ने आके मेरे हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने अपनी बॉडी से अपने आप को रेगुलेट करना शुरू किया तो उसने मेरी बॉडी को भी पकड़ लिया। तो इसका मतलब है कि यार ये लोग बड़े जालिम हैं, दे डू नॉट अप्रूव of me, they do not like me, they don't let me do what I find helpful. So वो क्या करते हैं, they tend to get more and more solitary, वो और छुप जाते हैं और ऐसी जगह पे जाके अपना स्टिमिंग करनी शुरू करते हैं जहाँ पे आप उनको देख ना सकें या जहाँ पे you can't reach them, right? तो ये होता है। लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप बच्चे की लीड लेते हैं, जो बच्चा कर रहा है आप वो करते हैं, ठीक है? एंड यू जॉइन देम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड नॉन जजमेंट। अगर फर्ज करें कि मेरा मेरा बच्चा है जो है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा जो है वो रॉक करता है ऐसे बैक एंड फोर्थ, वो हिलता है, अपनी बॉडी को हिलाता है, और मैं भी उसके साथ बैठ के उसको ज्वाइन इन करूं और मैं भी अपनी बॉडी को हिलाना शुरू कर दूं, राइट? इससे क्या है, अगर किसी वक्त हम इन पर्सन ये वर्कशॉप ये कर रहे होते वेबिनार, तो मैं आपको करके बताती कि जब एक इंसान ये काम करता है तब, और जब सारे लोग उसके साथ मिलकर ये काम करते हैं तो कितना डिफरेंट फील होता है उस बंदे को जो पहले अकेला कर रहा था। तो आप जब ये काम करते हैं ना तो यू एक्चुअली शो योर चाइल्ड कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम इन दिस विद यू। ज्वाइनिंग करते हुए जो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कॉपी नहीं करना बच्चे को। ये नहीं है कि अब मेरा बच्चा जो है वो रॉकिंग कर रहा है बैक एंड फोर्थ, तो मैं बैठ के रॉकिंग मैं भी उसको कॉपी करना शुरू कर दूं, हर थोड़ी देर बाद उसके साथ देखना शुरू कर दूं, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है। नहीं, ये दिस इज कॉपीइंग। कॉपीइंग एंड ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि आप किसी की एक्टिविटी का हिस्सा बन जाते हैं, आप उसको उसकी नकल नहीं कर रहे होते, आप उसका हिस्सा बनते हैं। सो यू हैव टू कम फ्रॉम अ माइंड सेट वेयर यू आर एक्चुअली इंजॉइंग दैट एक्टिविटी लाइक योर चाइल्ड इज इंजॉइंग। अगर आपका बच्चा जो है वो अपनी अपनी आंखों के आगे अपनी उंगलियां रख के जो है वो उनको देखता है, आप एग्जैक्टली वही करेंगे, आप भी अपनी आंखों के आगे उंगलियां रख के देखेंगे, एंड देन यू ट्राई टू एब्जॉर्ब योरसेल्फ इन दैट एक्टिविटी। Why I'm saying that you absorb yourself in that activity is because you're going to see कि जब आंखों के बहुत करीब आपकी उंगलियां आ जाती हैं तो it has a very hypnotic effect, and that is how you are going to probably understand कि वो जो hypnotic effect है, it's because probably it is soothing for your child, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। This could be totally a visual stim, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी, लेकिन स्टिमिंग की जो आपने उसको जो बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प आपने करनी है वो तो आपने करनी ही है, लेकिन अंटिल द टाइम यू प्रोवाइडिंग योर चाइल्ड विद दैट हेल्प, आपने उसकी वो चीज जो है उसकी जो नीड है उसको रोकना तो नहीं है ना। द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट दैट इनपुट समवेयर और द अदर, किसी ना किसी तरीके से वो तो अपना इनपुट ले ही लेगा। तो बजाय इसके कि हम उसको मना करें वो इनपुट लेने के, लेट्स बी पार्ट ऑफ दैट इनपुट। Let's show our children, okay, we respect what their need is right now. We are totally okay with the way our children are taking care of themselves, and we are with them. We are joining them. We are not making enemies with them. We are not going against them. We are not stopping them. We are with them. ये है basically the crux of joining. कि आपने कॉपी नहीं करना, आपने उनकी इस एक्टिविटी को ज्वाइन करना है। आपने जब ज्वाइन करना है तो अपने आप को इस ऐसे एंगल पे रखना है कि आपका बच्चा जो है वो, जैसे आप कहते हैं ना कि एक उर्दू का लफ्ज होता है उचट्टी सी निगाह, कि वो आपको उसको मेहनत ना करनी पड़े, वो जहां है वो वहीं से आपको नजर उठा के देख सके आसानी से, सो दैट द चाइल्ड कैन सी कि आप जो है वो उसके साथ हैं। ज्वाइनिंग करते हुए आपने जिस चीज का एक और भी बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि कभी भी आपने उस चीज से ज्वाइनिंग नहीं करनी जिससे आपका बच्चा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा जो है उसको वो टावर्स बनाता है रिपीटेडली और उसके ब्लॉक्स हैं जिसके साथ वो कर रहे हैं, आपने उस बच्चे के ब्लॉक्स नहीं लेने, यू कम अप विद योर ओन सेट ऑफ ब्लॉक्स,
ठीक है। अगर आपका बच्चा आपके भी ब्लॉक्स ले लेता है, कोई बात नहीं, जो टूटे फूटे पुराने ब्लॉक्स हैं जिनको वो यूज नहीं करता, आप वो यूज कर लें। अगर वो भी नहीं देता आपको, तो आप कोई डब्बे ले लें, कोई और चीज ले लें और उसको स्टैक करना शुरू कर दें। द आइडिया इज टू join the activity of the child. The idea is not to take away things from the child. Okay? So आपने कभी भी बच्चे की चीज लेके उसको अपनी ज्वाइनिंग के लिए यूज नहीं करना। ठीक है। अब आपने ज्वाइनिंग कब तक करनी है? तब तक करनी है जब तक कि बच्चा खुद अपनी एक्टिविटी छोड़ के आपकी तरफ अटेंटिव नहीं हो जाता या आपके पास आ नहीं जाता। Till that time, you have to keep joining. This duration of joining is determined by your child, not by you. और जब आप ज्वाइन कर भी रहे होते हैं, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया ना कि कॉपी नहीं करना, उसमें उसकी एक्टिविटी को बेसिकली आपने ज्वाइन करके महसूस करना है, उसको एंजॉय करना है। ये नहीं कि आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि अल्लाह क्या मुसीबत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाय अल्लाह मैं क्यों हाथ ये क्यों फ्लैप कर रहा हूँ, ये कब रुकेगा। नो, you should not be doing that. That is lethal. That is lethal in terms of the relationship development that is supposed to happen when you're doing this joining, because it just kills the whole purpose. आपने उसी reverence के साथ, उसी enthusiasm के साथ, उसी जोश के साथ और खुशी के साथ वो काम करना है जिसके साथ आपका बच्चा कर रहा है। And consider like this fact पहले से ही कि आपने कितनी देर के लिए उसके साथ वहां पे उस कमरे में, बाद में हम सनराइज प्ले रूम की भी बात करेंगे जहां पे आपने ये सब कुछ करना है, कि आपने कितनी देर से प्रोग्राम अपना स्टार्ट करना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लिटिल एज 15 minutes and you can just extend it every single day progressively to 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, जितना भी आप करना चाहें। तो जितनी देर आप उस कमरे में हैं और ज्वाइन कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, उतनी देर में यू हैव टू डू इट विद फुल zeal and zest. ये नहीं जैसे मैंने भी कहा कि बस यार क्या मुसीबत है, उफ थक गया हूं मैं, छोड़ दो। You know, if you think you're not ready for it, don't do it. It is as simple as black and white. Sorry to interrupt. Actually, we are running short of time. I know we really are enjoying a lot with your presentation, लेकिन it's already 6 or 7. तो अगर थोड़ा सा हम जल्दी से इसको wind up कर सकें ताकि फिर थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, ओके 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 ओके। इन वजह वैसे ज्यादा भी यही कि ज्वाइनिंग के ऊपर ही ज्यादा फोकस है, बाकी चीजें तो हम फिर भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। Actually, we had started late. So मेरा ख्याल है कुछ टाइम तो डॉक्टर शगुफ्ता को दें कि मेन चीजें अच्छी तरह कवर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने इसलिए उनको पहले से थोड़ा सा रिमाइंडर दे दिया कि वी कैन वाइंड अप इन 10 to 15 minutes मोर। आप 10 है ना 15 मिनट्स तक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, डोंट वरी, हाँ जी, इट शुड बी डन टिल दैट। सो दिस इज हाउ बेसिकली ज्वाइनिंग के ऊपर मैं ज्यादा फोकस इसीलिए करना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल स्टेप ऑफ द सनराइज प्रोग्राम। बाकी चीजें तो आप बाद में करेंगे ना, क्योंकि पहली यही चीज है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू help you develop that bonding with your child. Basically वो trust का एक relationship जो है ना आपके और आपके बच्चे के दरमियान, वो इसी से बनना है कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करे और वो उसको इस चीज का हो कि अच्छा यार, you know, this person is not bad, this person has respect and value for what I do, this person does not stop me from doing what I'm doing. So that is the whole idea of joining, relationship building and bonding. Once aapki joining jo hai that starts in, so then you start realizing what are red lights and what are green lights. Red lights basically just like the signal lights, red lights means stop. जो बच्चा आप जब भी आपका बच्चा जो है वो किसी भी किस्म की रिपेरेटिव एक्टिविटी में बिजी होता है, या वो अपने किसी काम में या अपने जैसे हम कहते हैं ना अपनी दुनिया में ही होता है, या बच्चा आपका सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, ये सारे वो टाइम्स हैं विच आर रेड लाइट्स। इस टाइम पे द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज जॉइन योर चाइल्ड। ठीक है, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने इस टाइम पे, आपने उसको कोई नई चीज सिखानी नहीं है इस टाइम पे, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ज्वाइन करना है। अगर एक बच्चा स्पीकिंग है और वो एक ही चीज के बारे में बार 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 बात कर रहा है, तो ये भी उसकी एक रेड लाइट है, मीनिंग दैट चाइल्ड इज नॉट रेडी फॉर एनी न्यू एक्टिविटी एट दिस टाइम। सो दिस इज द रेड लाइट्स। Any time when the child is stimming, doing any exclusive activity, self-regulating, these are all red lights, and you respond the red lights by
joining. But after you join in, you get a lot of green lights. Green means go, meaning your child is looking at you. Your child is paying attention to the activity that you're doing. बच्चा आपके पास आ रहा है, physical proximity है, eye contact है, shows interest in you as a parent. These are all green lights. और green lights का मतलब है कि you are ready for an interaction. Okay, so whenever you have green lights, आपने क्या करना है, आपने celebrate करना है, and you have to celebrate your child like there is no tomorrow. आपने खूब जोश से इंतहाई एक sunrise में we use a terminology which is called the 3 E's. Excitement, energy, enthusiasm. आपने खूब उसको जो है वो बताना है कि I'm so happy. आपने मेरी तरफ देखा है. Oh, wow, I love it when you look at me. Look, your eyes are so beautiful. I love your smile. आपने इतना उस चीज को उस इंटरेक्शन को आपने इतना ज्यादा अप्रिशिएट करना है कि बच्चे को लगे कि उसने आपकी तरफ एक नजर नहीं डाली बल्कि कोई पहाड़ फतह कर लिया है. ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ देखना, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ एक इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट करना, दैट इज द डिफिकल्ट मोस्ट पार्ट बिकॉज दैट इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ ऑटिज्म जो कि बच्चों में लैक करता है, which is like just spontaneous interaction होता है. So if your child is giving you any green light in that sense, celebrate them and make a big deal out of that. ताकि बच्चों को पता चले कि what they do is important and they have to do it more. जिस चीज को आप ज्यादा तवज्जो देते हैं वो चीज बढ़ जाती है. जिस तरह सारे प्रोग्राम्स के ABCs होते हैं, इसी तरह सनराइज प्रोग्राम का ABC भी है. A is for assessing the child, B is for bonding, C is for challenge. Assess से मुराद ये कि while you're joining with your child. Okay, and when you're joining and you see there's a red light, at that time you only bond. Bond means you join the child. And when you're assessing the child, when the child is with you, आप उसके साथ खेल रहे हैं, आप कमरे में हैं और उस वक्त बच्चा जो है वो आपको green lights दे रहा है, तो that is the time when you challenge the child. How you're going to do that? You're going to see, excuse me, कि जो green light है, is that a fleeting green light? Meaning कि वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए उसने आपको देखा है और वापस से अपना काम करने चला गया, तो आप भी उसमें थोड़ी बच्चे को उसके आई कांटेक्ट के लिए या उसकी किसी भी एक्टिविटी या इंटरेक्शन के लिए आप उसको सेलिब्रेट करें एंड देन यू जॉइन बैक द एक्टिविटी जो कि आपका बच्चा कर रहा है. If it is a sustained green light, sustained green light का मतलब ये है कि बच्चा आपके पास आ गया, आपके पास आके बैठ गया, आप जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. So then you celebrate the child and then you challenge the child. Challenge किस तरह से हमने करना है कि हमने अपना interactive attention span जो है उसको build up करना है. अब अटेंशन स्पैन जो है ना वो हमारे बच्चों में उसकी कमी नहीं होती. हम कहते हैं कि हमारे बच्चे अटेंशन डेफिसिट है. अटेंशन डेफिसिट नहीं होते, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन जो है वो सॉलिटरी होता है. What we want is an interactive attention span. कि वो हमारा जो मकसद है वो ये है कि वो हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, वो हमारी तरफ ज्यादा देखें, हमारे में ज्यादा इंटरेस्ट लें जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनमें, और वो हमारे साथ ज्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करें. They should come and hang out with us in our world more and more. And that interactive attention span is going to be built up by using their motivation. अब मोटिवेशन जो है ना दो तरह की होती है. एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑल द रिवॉर्ड्स, द रीइंफोर्सर्स दैट वी यूज. कि हम बच्चे को एक काम कराते हैं, अच्छा ओके यू डू दिस एंड देन यू गेट दिस, अच्छा आप ये काम कर लो उसके बाद आपको ये वाला रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये काम कर लो तो आपको एक चॉकलेट मिल जाएगी, ये काम कर लो तो. दीज आर ऑल एक्सट्रिंसिक motivators, meaning कि बच्चा काम तो कर रहा है but you know that is not necessarily the point कि बच्चा वो चीज सीख भी रहा है. The child is doing it because he wants that reward. So पता है कि ये एक फजूल सा काम है, ये मैंने करना है, मेरी जान छूटेगी, and then only I'm going to get the reinforcer. Whereas what we want to work on is the intrinsic motivation that we want to develop. कि हमें उस बच्चे को encourage करना है कि बच्चा without any rewards खुद से motivated हो to learn or to do what we want the child to do, या जो हम उसको सिखाना चाहते हैं. उसके लिए we need to see
कि बच्चा जो है उसके फेवरेट, उसका जो रिपेटिटिव बिहेवियर है वो क्या है, बच्चा कौन सी चीज़ें पसंद करता है, क्या उसके फेवरेट टॉयज क्या हैं, क्या उसकी फेवरेट चीज़ें एनिमल्स हैं, क्या उसकी फेवरेट चीज़ें कोई सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं, कोई कार्टून्स हैं, कोई सर्टेन काइंड ऑफ फूड जो कि बच्चे को बहुत पसंद है, टॉयज हैं, बुक्स हैं, ऑल दोज थिंग्स। ये सारी जो है ये उस बच्चे के मोटिवेशंस हैं। हमने क्या करना है, using these motivations we have to create games around them and incorporate the goals that we want our children to achieve. फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे बच्चे के साथ सनराइज कर रहे हैं, आपने उसको नंबर सिखाने हैं, और उस बच्चे का जो एक मोटिवेशन है दैट इज मे बी लाइक डायनासोर्स। सो आप एक गेम प्लान करेंगे उसके हिसाब से कि मे बी यू कैन हैव 2 टीम्स ऑफ डायनासोर्स और हैविंग अ फाइट, और वो डायनासोर्स की एक टीम जो है उसमें 5 प्लेयर्स हैं, दूसरी टीम में 10 प्लेयर्स हैं, एंड यू नंबर ईच डायनासोर, एंड व्हेनेवर दैट डायनासोर गोज टू फाइट यू कैन से दैट नंबर एंड यू कैन फाइट। सो बेसिकली आप सिखा तो नंबर्स ही रहे हैं, आप सिखा तो उसको काउंटिंग ही रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यू जस्ट मेकिंग द चाइल्ड राइट और सी और यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, you are using his favorite motivation incorporated into a game to achieve the goal, right? So इस तरह करके हमने बच्चे का अपने साथ जो हमारा टाइम वो स्पेंड करता है, इंटरैक्टिव अटेंशन स्पैन, उसको हमने इंक्रीज करना है। एंड वंस वी हैव एन इंटरैक्टिव अटेंशन स्पैन ऑफ से 15 to 20 minutes, that is when you're ready to move on. उस वक्त फिर आप बच्चे के डिफरेंट गोल्स को उसके अंदर डालें और good to go. This slide actually shows the playroom. I mean, it's not exactly a playroom, but it has to be a small, less distracted space. जहाँ पे एक खाली कमरा, उसमें पैडेड फ्लोरिंग होनी चाहिए, ताकि अगर आपका बच्चा प्ले को पसंद करता है और तो वो कहीं गिर जाता है तो चोट नहीं लगती। काइंडली प्लीज म्यूट योरसेल्फ ताकि ये बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू। इस कमरे में आपके पास एक बड़ा मिरर होना चाहिए, और जो भी आप चीजें रखें उसमें 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जिम बॉल रखे हैं तो वो 2 होने चाहिए, अगर आपने कोई और चीज ऐसी रखी हुई है फिजिकल प्ले के लिए तो वो कोई पपेट्स हैं या कोई भी चीज है तो आपने 2 रखने हैं। कोई ऊपर एक जो है वो वॉल माउंटेड शेल्फ हो जिसपे कि बच्चे की रीच ना हो, वहां पे आपका सारा रिसोर्स पड़ा होना चाहिए कि जो बच्चे को पसंद है चीजें वो सारी वहां पे हो। उसके अलावा इट शुड बी अ गैजेट फ्री रूम। इसमें कोई गैजेट, कोई टैब्स, फोन्स या इवन कोई इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड टॉयज नहीं होने चाहिए। इस कमरे में द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन अदर देन योर चाइल्ड शुड बी यू, ताकि बच्चा जो है वो आपके ऊपर फोकस करे, आपकी बात सुने, उसको अगर कोई नीड है तो वो आपके पास आए। बेसिकली वी हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे बच्चा जो है वो आपके पास आएगा। So you start off your playroom, your sunrise program in a dedicated small space, जिसको आप convert कर लें एक playroom में। वहाँ पे उसके साथ आप 15 मिनट से 30 मिनट से आप शुरू करें, and then you build on your sunrise program duration. जैसे आप काम करना शुरू करेंगे, you are going to realize कि आपका बच्चा जो है, आपका बच्चा बहुत कुछ कर सकता है जब वो रेगुलेटेड होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, योर चाइल्ड इज लॉट मोर देन द बिहेवियर्स दे शो। उस कमरे में जब आप जाएंगे, जब आप उनको ज्वाइन करेंगे, जब आप उनकी चीज़ों को उस तरह महसूस करेंगे जैसे कि वो कर रहे हैं, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर देयर बिहेवियर्स। दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू बी एबल टू स्टेप इनटू देयर वर्ल्ड एंड शो देम योर डीपेस्ट एक्सेप्टेंस एंड लव फॉर योर चिल्ड्रन, एंड दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू, bond with you, hold your hands, and come out of their world. And with this, I end my presentation. Thank you.